Good morning, students. Today in our math class, we will start our new chapter that is perimeter and area. So, first we learn about what is perimeter. A perimeter is the distance around a plane figure or the length of the boundary of a plane figure. For example, if this is a square and we want to measure the length of this all sides, okay, because in a square all sides equal, and we have to calculate or measure the length of all sides of this square. So this is called a perimeter. उसके चारों ओर या एक तरह से कह दें कि किसी प्लेन फिगर या प्लेन शेप्स के अगर हम उसके बाउंड्री को अगर हमें मेजर करना है तो दिस इज आवर perimeter. Okay, so here different formula used to determine the perimeter. So first one is perimeter of rectangle, that is 2 multiply by in bracket L plus B. L is for length and B is for breadth, because in rectangle there is length and breadth. Now perimeter of a square 4 multiply by length of one side, because in a square all sides are equal, so here we write length of one side. Perimeter of equilateral triangle. Equilateral triangle, that means a triangle that three sides equal, all sides equal हम कह सकते हैं. So 3 multiply by side, one side. ठीक है. So this is all about formula to determine the perimeter of rectangle, perimeter of square and perimeter of equilateral triangle. Now we will do some questions on based on this formula, that is exercise 17a. The question one is find the perimeter of a square with side length 15 centimeter. Okay, so we write perimeter of a square is equal to 4 multiply by length of one side. Length of one side आपको given है, we have to put the value in formula. 4 multiply by 15, हम इस लेंथ ऑफ वन साइड की जगह क्या पुट करेंगे 15, क्योंकि वो आपकी वैल्यू दी हुई है वन साइड की. एंड 4 multiply by 15, that is 60. एंड हियर वी राइट द यूनिट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज cm, सेंटीमीटर. क्वेश्चन में जो वैल्यू आपकी जिस यूनिट में दी हुई है वही यूनिट हम अपने आंसर में भी राइट करेंगे. Now C is 1.9. Here is side given in decimal number. Okay. So be careful about multiplication. 4 multiply by 1 by 1.9, that is 7.6, and here unit given meter. Okay. So you all do this way step by step. First you write the formula and then put the value. Now come on the question number second. Find the perimeter of rectangle whose dimension are given below. ठीक है. Here we have to calculate the perimeter of rectangle. Length given to you and breadth given to you. Length 10 centimeter and breadth 5 centimeter. Now write the formula. 2 multiply by length plus breadth. So 2 multiply by length value put here 10 and breadth 5. 10 plus 5, that is 15. 2 multiply by 15, that is 30. Okay. And here both जो लेंथ एंड ब्रेथ आपका दिया गया है वो उसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर. एंड स्टूडेंट प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग्स दैट इन मेजरमेंट चैप्टर आपको ये बताया गया था कि जब भी हम यूनिट से रिलेटेड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो वैल्यू दी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ लेंथ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर में दी गई है एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर. ओके. अगर लेंथ यहाँ मीटर में दिया होता और ब्रेथ सेंटीमीटर में, तो हमें यहाँ क्या करना होता, किसी एक वैल्यू को या तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लेते या सेंटीमीटर में. दैट मीन्स कि जो आपके दोनों वैल्यू है या तो मीटर में होनी चाहिए या सेंटीमीटर में, तभी हम एडिशन कर सकते हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज लेंथ इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 36 मिलीमीटर. ओके. एंड हियर यू सी 2 यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स यूज्ड इन लेंथ एंड ब्रेथ. तो हमें यहाँ क्या करना होगा, किसी भी एक वैल्यू को किसी एक यूनिट में ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, आइदर इन mm, आइदर इन सेंटीमीटर. सो आई एम हियर कन्वर्टिंग दिस मिलीमीटर इन सेंटीमीटर.
तो मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर, यू ऑल नो ना, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड millimeter. So here the division by 10. Now perimeter of rectangle, that is 2 multiply by length plus breadth. Now अब आपकी वैल्यू क्या होगी, एक ही यूनिट में आ गए, यहाँ भी cm है और यहाँ भी cm है. Now put this value and solve this and we got 20. Now question number 6 is complete the given table. Breadth given to you, perimeter given to you and you have to find out length. आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है. ओके, सो दिस इज लिटिल कम्प्लेक्स, थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स है अदर क्वेश्चंस से. बी केयरफुल, बहुत ध्यान से देखेंगे. पेरीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपका फॉर्मूला होता है. ओके, एंड हियर ओनली 2 वैल्यू गिवन टू यू. Okay, here only 2 value given to you. The first one is breadth and second is perimeter. Okay, so perimeter की जगह हम 58 राइट कर लेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ आपका निकालना है एंड ब्रेथ के पास के लिए आपका क्या दिया है, 14 दिया है, वो हमने राइट कर लिया. नाउ सी वेरी केयरफुली, हमें लेंथ फाइंड आउट करना है. लेंथ आपका लिखा हुआ है, ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू क्या है. हियर 2 इज इन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में है ना, ठीक है. तो जब हम इसको 58 के नियर ले जाएंगे तो वहाँ 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीज़न में. तो वो क्या हो जाएगा, 58 डिवाइडेड बाई 2. और इधर की वैल्यू जब आपका 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है चला गया, ठीक है, तो यहाँ क्या आपका हो जाएगा, लेंथ प्लस 14. नाउ व्हेन वी डिवाइड 58 बाई 2, व्हेन वी गॉट 29. 29 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 14 एंड अब लेंथ प्लस 14 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, केवल लेंथ की वैल्यू निकालनी है. तो हमें 14 को भी क्या करना होगा, वहाँ से ट्रांसफ़र करना होगा. ठीक है, यहाँ 14 प्लस में दिया हुआ है तो इक्वल टू के उधर जब ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन में माइनस में हो जाएगा. ठीक है, सो वी राइट 29 माइनस 14. नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दिस वी गॉट 15 मीटर लेंथ. ठीक है, लेंथ की वैल्यू आपकी यहाँ पे मीटर में आ गई. पहले ही हम यहाँ देख लेंगे कि दोनों वैल्यू मीटर में दी हुई है कि नहीं दी हुई है. ओके, सो दिस वे you will do this question. Now come on another question that is same. यहाँ पे आपको हमें अभी हमने पहले क्वेश्चन में लेंथ फाइंड आउट किया था, यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेथ. तो सेम वही हम प्रोसेस करेंगे. ठीक है, 2 को पहले हम इधर कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, फिर 20 को ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा. ओके, सो दिस वे यू विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आगे कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. नाउ क्वेश्चन 5 इज हाउ मच लेस विल बी नीडेड टू पुट राउंड स्क्वायर कुशन. एक स्क्वायर कुशन है, ठीक है, कुशन एक स्क्वायर कुशन है, उसके चारों ओर आपको लेस लगानी है. ठीक है, और इस कुशन की साइड जो दी हुई है वो 70 सेंटीमीटर है. तो बिकॉज दिस इज़ स्क्वायर कुशन, 70 सेंटीमीटर आपका वन साइड का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस साइड का भी वैल्यू क्या होगा, 70, इधर का भी 70 और इधर का भी 70 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द लेस रिक्वायर इफ़ द लेस कॉस्ट पर मीटर 10 रुपीज़. ठीक है, अब इसके चारों ओर हमको लेस लगानी है और 1 मीटर लेस का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है. तो हमें टोटल कितना कॉस्ट आएगा लेस लगाने का. ठीक है, हमें ये फाउंड आउट करना है. सो सी वेरी केयरफुली हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन. फर्स्ट वी फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पहले हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे कि ये टोटल लेंथ कितनी हो रही है जिसके चारों ओर हमें लेस लगानी है. तो मेज़रमेंट निकालने यहाँ हम करने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी जब हमें चारों ओर का ये निकालना होगा. ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ वन साइड, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. 4 मल्टीप्लाई बाई 70 दैट इज़ इक्वल टू 280 सेंटीमीटर. एंड स्टूडेंट यू सी हियर, आपको जो वैल्यू दी गई है 1 मीटर लेस का जो कॉस्ट दिया गया है वो मीटर में दिया गया है और यहाँ 280 सेंटीमीटर आ रहा है. इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में. देन वी गॉट 2.80 मीटर. 100 से हम क्या करेंगे, डिवाइड, बिकॉज
1 मीटर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नाउ इफ पर मीटर कॉस्ट 10 रुपीज़, ठीक है, 1 मीटर का कॉस्ट इतना है, तो 2.80 मीटर का कॉस्ट कितना होगा। आपको पता है कि एक की वैल्यू दी हुई है और ज़्यादा की पूछ रही है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। 2.80 मल्टीप्लाई बाई 10, देन वी गॉट 28। दैट मीन्स कि हमें इस क्वेश्चन जो स्क्वायर क्वेश्चन दिया गया था उसको अराउंड अगर लेस लगानी है तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 28। Now come on, next section of this chapter, that is area. Area of a shape is the amount of space it cover, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया क्या होगा, जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी टेबल पे एक बॉक्स रख रहे हैं, ठीक है, तो जितना वो स्पेस कवर कर रहा है तो दैट इज़ द एरिया, वो उसका क्या कहलाएगा, एरिया। Area is found by calculating how many square unit are needed to exactly cover the given shape, ठीक है। अब उस शेप के द्वारा जो स्पेस आपका कवर किया जा रहा है उसके लिए कितने स्क्वायर यूनिट की आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, उसका मेजरमेंट का, उसको मेजरमेंट करने का वो उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि उस शेप के द्वारा जो स्पेस लिया जा रहा है, ऑक्यूपाई किया जा रहा है, वो उसका क्या है, एरिया है। एरिया, यूनिट ऑफ एरिया दैट इज़ मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर, इस तरह से हम दैट मीन्स कि एरिया में हम क्या, क्योंकि मेनली वी हैव टू मल्टीप्लाई of two unit, then we here write mm², इसीलिए हम यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट का भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए जो आपका यूनिट राइट होता है वो mm² में होता है। अभी पेरीमीटर में आपने देखा केवल मीटर या सेंटीमीटर लिखा हुआ था, ठीक है। हियर देयर वी ऐड, वहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, ठीक है। हियर वी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट्स के भी मल्टीप्लाई होंगे, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, या फिर अगर इंग्लिश में ऐसे हमें उसको प्रोनाउंसिएट करना होगा तो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन जब हम राइट करते हैं, ठीक है, तो हम उसको ऐसे करेंगे। और अगर मैथमेटिकल वे में हमें राइट करना है तो मिलीमीटर स्क्वायर, mm², ऐसे लिखेंगे, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट मीन्स कि साइड का स्क्वायर। लेंथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन ब्रेथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन ऑन दिस। हियर एक्सरसाइज 17b, कंप्लीट द टेबल फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। For area of rectangle, length value given, width value given, okay, we write this way formula, length multiply by breadth, and we put here value and multiply, and centimeter, that is centimeter square, okay। Now question number C, this way you all do, ठीक है। हम बस be careful about both units have same, दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। either you do addition, subtraction, division, multiplication। Question 5 is square, area of square. So area of square is side multiply by side, okay। Here side given to you, जब 1 वैल्यू दिया गया होगा दैट मीन्स कि वो स्क्वायर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4, एंड यूनिट गिवन इन सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वेरी इजी बिकॉज दिस क्वेश्चन ओनली बेस्ड ऑन फॉर्मूला। Another question, that is question number 11. Find the length of the rectangle whose area 400 square centimeter, देखना यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश वे में। breadth is equal to 16 centimeter. Now what we have to find out, length of the rectangle, लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ फाइंड आउट करना है। So first we write formula, area of rectangle is equal to length multiply by breadth. Now put the value, area of rectangle 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, हम वो पुट कर देंगे। लेंथ आपको निकालना है और ब्रेथ की वैल्यू 16 दिया हुआ है, ठीक है।
अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लेंथ की, तो लेंथ को हम यहीं पे रहने देंगे। हमें यहाँ किसको ट्रांसफ़र करना होगा, 16 को। 16 हियर गिवन इन मल्टीप्लिकेशन, तो ट्रांसफ़र जब हम इनका करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवीज़न में, ठीक है। तो 400 डिवाइडेड बाई 16 एंड वी गॉट 25 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें लेंथ की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम यहाँ स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ओनली इन एरिया। एरिया की जहाँ बात आएगी वहाँ पे हम स्क्वायर लगाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एरिया गिवन टू यू, लेंथ गिवन टू यू, ठीक है। तो यहाँ क्या आपको निकालना है, ब्रेथ निकालना है। इन क्वेश्चन नंबर 11 आपको लेंथ फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे हम सब। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज एरिया एंड ब्रेथ गिवन टू यू। मोर कम्प्लेक्स क्वेश्चन बट वेरी इजी इफ वी डू प्रोसेस वे। यहाँ क्या फाइंड आउट करना है हमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। लेकिन स्टूडेंट हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें वैल्यू किसकी मिली हुई है, दैट इज ओनली ब्रेथ एंड एरिया, ठीक है। हमें लेंथ की वैल्यू नहीं पता है। सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड देन वी put all these value in this formula. So how we will find length, हम लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ एरिया की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, एंड ब्रेथ दिया हुआ है। दैट मीन्स कि अगर हम एरिया रेक्टेंगल एरिया का फॉर्मूला अगर हम राइट करें तो उससे हमारा क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। तो 360 इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि लेंथ की वैल्यू दी नहीं है। अब 6 को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो हियर 6 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन और यहाँ क्या हो जाएगा, डिवीज़न में। नाउ 360 डिवाइडेड बाई 6 वी गॉट 60 सेंटीमीटर। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ लेंथ। नाउ वी हैव लेंथ एंड ब्रेथ हमें मिल गया है, ठीक है। वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो दिस वे you all do this question, that is perimeter of rectangle 2 multiply by length plus breadth, 60 plus 6 that is 66 and then multiply by 2 that is 132 centimeter. So student, this is all about this chapter. You all watch video carefully and then this write this notes and this question proper way in your copy.